Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to study social and religious movements in Indian modern history. This topic is very important for UPSC CSC examination and also for any competitive examination. If we will look towards the UPSC CSC examination, you will find in the prelims examination they ask questions like arrange the movements in their chronological order. So you should know the time period of the revolts and also the factors that were responsible for all these movements or revolts. We called these movements like social and religious movements as the civilian war. So we will discussing about all this topic in very brief. So let's discuss about the introductory part, then we will look towards the causes of the rebellion, and after that we will look towards the classification of popular uprising. And most important topic today we will be covering about the political and religious movements like Fakir uprising, Sannyasi uprising till Mopla rebellions tak. So we will be covering all this topic in very brief. So let's understand the introductory part. We all are aware that in 1857 there were a very important revolt that took place by Indian citizens. Like we call it as a Sepoy mutiny, sometimes we call it as a religious war of 1857, sometimes we call it as a Sepoy, sometimes we call it as a military war. So different terms were given by different historians and different points, different scholars. If we will talk about after what happened after 1857, so after 1857 there were some administrative changes that took place in India, and also some economic policies were got changes, so that takes basically the system of tenure system should be removed or should be abolished. That type of practices started happening after the revolt of 1857. तो अगर हम लोग बात करते हैं कि what were the factors that led to the another revolt, that led to the another civil rebellions, was the basically erosion of traditional form of authority and the increased economic pressure. लाइक वी ऑल आर अवेयर कि जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था 1857 किया, उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? टैक्स, दूसरा रिलीजन, तीसरा सोशल, चौथा कल्चरल, कहीं पे पॉलिटिकल, कहीं पे इकोनॉमिक, मतलब ये सारी हमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स दिखती थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ था 1857 का. बट अगर हम लोग देखते हैं जो अदर सिविलियन बेसिकली सिविलियन वॉर है या सिविलियन रिवेलियन है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो था कि जब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी को बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उसको इरोड करने लगे, उसको हटा के वो वेस्टर्न पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने लगे, तो वो एक फैक्टर बढ़ गया. एंड सेकेंड फैक्टर वॉज द इंक्रीज्ड इकोनॉमिक प्रेशर्स, and that led to the different wars and different movements that led by sometimes peasants, sometimes by tribals, sometimes by Sikhs, sometimes by sannyasis. So we will discuss all about this in detail. तो अगर हम बात करते हैं कि हम जब हमारे यहाँ ब्रिटिश पावर आए इन 1600, सो व्हाट दे डिड कि सबसे पहले उन्होंने बंगाल में अपना जो उनका पावर था वहाँ पे इस्टेब्लिश किया. और जब वो बंगाल को जीत गए, बंगाल के बाद बेसिकली बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों पे उनका पावर आ गया. सो व्हाट दे स्टार्टेड किया, वो इकोनॉमिकली भी पूरे कंट्री को कैप्चर करना शुरू करने लगे. एंड दैट लेड टू द डिसकंटेंट, रिजेंटमेंट एंड रेजिस्टेंस एट एवरी स्टेज. हर जगह पे जहाँ पे जाते थे लोग उनके अगेंस्ट जाने लगे, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने लगे. वो हर जगह चाहते थे चेंजेस लाना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी को चेंज करने लगे. तो अगर हम लोग कॉजेज की बात करते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिबेलियंस, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या था कि जो रैपिड चेंज हो रहा था, जो ब्रिटिश चेंज ला रही थी, रैपिड चेंज ला रही थी इन इकोनॉमी, इट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर सिविल रिबेलियंस. दूसरा जो हम लोग कॉज बात करते हैं दैट इज द कॉलोनियल पॉलिसी. उनकी जो पॉलिसीज थी ताकि वो लैंड रेवेन्यू पे या जो भी सिस्टम ला रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या था कि वो पॉलिसी बेसिकली अपने प्रॉफिट के लिए लाते थे. एंड दैट लेड टू द डिसकंटेंट अमंग द सिटीजन्स, डिसकंटेंट अमंग द पीपुल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग कि उनके अगेंस्ट छोटे छोटे रिवॉल्ट करने लगे. और हमें एक बात पता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक सडन आउटब्रेक नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ और मिलके एक बार बस्ट हो गया. तो उससे पहले बहुत से छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए थे, इन्हीं वजह से इकोनॉमिक फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो आती थी. इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ देखता है कि जो जमींदार या पॉलीकास्ट थे वो भी टाइम आते ही वो भी अपना कंट्रोल अपने लैंड से लॉस्ट करने लगे.
क्योंकि वो उतना टैक्स माइट पॉसिबल कि नहीं पे कर पाते थे, उतना टैक्स जो कलेक्ट करना चाहिए था उतना कलेक्ट नहीं कर पाते थे, और कलेक्ट करके वो बेसिकली ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं प्रोवाइड कर पाते थे, जिसकी वजह से इवन उन्हें भी अपने लैंड से उनका जो कंट्रोल था वो लॉस्ट करना पड़ा। तो वो भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने लगे। और अगर हम लोग बात करते हैं कि पीजेंट्स और आर्टिशंस उनके अगेंस्ट ही हो गए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, टैक्स। लैंड टेन्यू सिस्टम जो था उनका, या जो भी वो लाते थे सिस्टम लाइक टैक्स से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा उसमें किसी का नुकसान होता था तो जो पीजेंट्स या आर्टिशंस होते थे। तो पहले तो उनका था कि चलो वो टैक्स पे कर रहा है, बट जब हम लोग देखते हैं कि हमें पता चलता है कि टाइम टू टाइम उन्हें इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो उनका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, उन्हें किसी भी तरह से टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट बढ़ गया, एंड दैट लेड टू द सेलिंग ऑफ देयर लैंड्स। एंड इसकी वजह से वो लोग सोचे कि नहीं, इससे बेटर है कि हम लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से भेजें। तो हमें यहाँ पे देखिए जमींदार, पीजेंट्स, आर्टिशन और जो हमारे बेसिकली कॉलोनियल पॉलिसी थे उनके अगेंस्ट हम लोग कैसे गए। अदर फैक्टर्स की बात करते तो वो था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिस्ट्रॉय करने लगे। वो यहाँ पे आते ही क्या करने लगे कि अपनी जो उनके प्रोडक्ट्स थी वो सेल करने लगे एट चीपर प्राइस, और जो हमारी प्रोडक्ट्स होती थी उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करने लगे। उसका हम इवन हमारी जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से जो भी हमारे जो भी ट्रेडर्स थे हमारे इंडिया के, या चिफ्टमैन या जमींदार, जो भी पेट्रोल्स बायर्स सेलर्स जो भी थे, वो उनके अगेंस्ट आने लगे। एंड अगर हम लोग बात करते हैं जो प्रिस्ट थे या स्कॉलर्स थे, वो उनके अगेंस्ट क्यों गए। तो प्रिस्ट का उनके अगेंस्ट जाने का सबसे बड़ा रीज़न था कि प्रिस्ट का जो रिलीजन होता है, हमें पता है कि कोई भी प्रिस्ट है जो धर्म को मानता है, तो अगर उसके अगेंस्ट हम लोग जाएंगे, चाहेंगे कि आप इस धर्म को एबोलिश कीजिए, तो स्वाभाविक बात है कि वो उसके अगेंस्ट जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे कि रिलीजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। दैट्स वाई जो प्रिस्ट जो थे उन्हें फील हुआ कि वो उनके रिलीजन पर थ्रेट बन रहे हैं। इवन जो स्कॉलर्स भी थे उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती थी, क्योंकि स्कॉलर्स को जो था वो चाहते थे कि उनकी ब्रिटिशर्स के वेस्टर्न स्टाइल में पढ़े, समटाइम्स स्कॉलर्स चाहते थे कि हम लोग इंडियन स्टाइल में पढ़ें। सो दैट ऑल्सो लेड टू द डिस्टर्बेंस इन आर्ट एंड लिटरेचर, एंड दैट लेड टू द मेजर रिवॉल्ट्स और वेरियस सिविल रेवोल्यूशंस इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉपुलर अपराइजिंग्स हुए, तो मोस्ट पॉपुलर अपराइजिंग जो था वो था पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स। बेसिकली पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट जो था वो मूवमेंट थे जो कि पॉलिटिकली और रिलीजियसली थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लाइक फकीर अपराइजिंग्स बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे वो लोग जो फकीर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए। वैसे अगर आप सन्यासी अपराइजिंग लेते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सन्यासी को लगा उनके रिलीजन पे थ्रेट, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गया। पागलपंथी, मतलब ये सारी कौन सी पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं। दूसरा अगर आप मूवमेंट देखते हैं तो दैट इज द मूवमेंट डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार्स। अगर जमींदार्स और रूलर्स जो थे उनको भी जब फील हुआ, जैसे आप बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तो वहाँ पे रूलर्स उनके अगेंस्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूलर्स को उनके सन नहीं है, तो दैट्स वाई अगर उनकी जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, सो ब्रिटिशर्स की वजह से उन्हें अपने जो भी उनका पावर होता था या जो भी उनका कंट्रोल होता था वो उनको किसको देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। तो दैट्स वाई जो रूलर्स थे वो भी उनके अगेंस्ट जाने लगे। और जमींदार अगेंस्ट क्यों जाएंगे? क्योंकि वो अपना लैंड लॉस कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कह रहे हैं कि तुम पैसा लाओ, पैसा नहीं लाओगे तो तुम्हें जमींदार देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी दो रिवोल्ट हुए। फर्स्ट वॉज वैली थाम्पे एंड सेकेंड वॉज पॉलीगार रिबेलियंस। तीसरा मूवमेंट की बात करते हैं, दैट इज द मूवमेंट बाय द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिपोज्ड रूलर्स लाइक रामोसी अपराइजिंग्स, गडकारी रिवोल्ट एंड स्वतंत्रवाड़ी रिवोल्ट। सो ये रिवोल्ट जो थी बेसिकली जो डिपोज्ड रूलर होते थे उनके द्वारा किया गया था। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड है दैट इज द ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स में भी दो आ जाते हैं। फर्स्ट वॉज नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स, जिसके 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेजेस में क्या था कि हमारा संथाल मूवमेंट एंड खोंद अपराइजिंग्स हुआ। दूसरा जो फेज था उसमें हमारा मुंडा अपराइजिंग एंड कोया रिबेलियंस हुआ। और थर्ड जो था वो था हमारा रुम्पा रिबेलियंस और चैंचू ट्राइबल मूवमेंट्स। तो ये बेसिकली जो हमारा नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स था, इसके अंदर हमारे बेसिकली 3 फेज होते हैं, और 3 फेजेस में आप देखेंगे कि 6 रिवॉल्ट्स होते हैं। वैसे ही अगर आप दूसरे बात करते हैं तो दैट वाज द फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स, जो फ्रंटल साइड में हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स थी? फर्स्ट वाज खासी, सेकेंड वाज सिंगफोज रिवोलियन एंड थर्ड इज द रानी गैडिनिलूस नागा मूवमेंट। सो ये बेसिकली हमारे मूवमेंट जो थे ये कहाँ पे हुए थे? फ्रंटियर साइड्स में हुए थे इंडिया के। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है? जो संथाल मूवमेंट था या खासी था या मुंडा अपराइजिंग था, रामपा रिबेलियंस था, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट। सो इसके अंदर बेसिकली हमारे 7 रिवॉल्ट्स आते हैं।
फर्स्ट इज सन्यासी, सेकंड इज फकीर, थर्ड इज पागलपंथी एंड फोर्थ इज वहाबी, ऐसे आपका फराइजी मूवमेंट्स, हुक्का मूवमेंट्स एंड मपलाह मूवमेंट्स. सो वी विल कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स इन वेरी ब्रीफ कि सन्यासी अपराइजिंग्स क्या था, इसके कॉजेज क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे और इसका टाइम पीरियड. तो सबसे पहले अगर हम लोग सन्यासी अपराइजिंग्स की बात करते हैं तो ये टुक प्लेस हुआ था बंगाल में. इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1772 लेके 1820 तक. तो अगर हम लोग बात करते हैं हिंदुइज्म में, तो हिंदुइज्म में सन्यासी का मतलब क्या होता है. ये सन्यासी वो लोग होते हैं जो वर्ल्ड से रिनॉन्स हो चुके होते हैं और वो सारी जो मोह माया है उन सारी अटैचमेंट से फ्री होते हैं एंड दे आर वर्ल्डली डिस्चार्ज. सो सन्यासी का रिवॉल्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो क्या थे, वो चारों तरफ से फ्री थे. तो वो लोगों से बेसिकली जो पैसे होते थे वो जैसे जमींदार होते थे या जो रूलर्स है तो उनसे पैसे लेते थे. तो जमींदार और रूलर्स जो होते थे वो भी अब देख रहे हैं कि उनको भी उतना पैसा नहीं आ रहा है कि वो किसी सन्यासी को उनके घर पे आ रहे हैं तो दे पाए. तो अगर वो सन्यासी को नहीं देंगे तो सन्यासी को भी गुस्सा आएगा और जमींदार से उनको भी गुस्सा आ रहा है. तो सन्यासी ने भी इसी के अगेंस्ट किया कि बेसिकली जो ब्रिटिशर्स बोलते थे सन्यासी को कि ये लोग जो है बेगर्स है, ये जो है इनको अलग अलग नाम दिए. समटाइम्स दे कॉल्ड इट एज ए एरेटिक बेगर्स, समटाइम्स दे कॉल्ड एट ए जिपैसिक्स ऑफ हिंदुस्तान, लॉलेस मेंडिकेंट्स. मतलब वो लोग डिफरेंट नाम दिए और उन्होंने बताया कि ये जो घूमने वाले लोग हैं ये आप लोगों को लूटते हैं. बट सन्यासी जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और वो उनका जो धर्म था वो रिलीजन की तरफ ज़्यादा ही बढ़े हुए थे. तो हुआ क्या कि वो उसमें बहुत से तरह के सन्यासी थे. तो अगर हम लोग बात करते हैं सेक्ट्स के बारे में तो वहाँ पे एक जो सेक्ट्स थे सन्यासी के, कुछ सेक्ट्स जो थे जो नॉर्थ इंडिया की तरफ वेरी करते थे, जिनका कुछ अलग अलग तरह का रिलीजन्स होता था. कुछ जो थे वो बंगाल्स में रह जाते थे. तो ये जो रिवोल्ट हुआ था बेसिकली जो बंगाल्स में रहने लगे थे सन्यासी उनके अगेंस्ट किया गया था. वेट सॉरी. सो अगर उसके बाद से हम लोग बात करते हैं सन्यासी का कि उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद से होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं कि जो बंगाल होता है बंगाल पे उनका रेवेन्यू राइट ले लेते हैं. और जब वो बंगाल पे रेवेन्यू राइट ले लेते हैं तो जमींदार के पास जो पावर होता है लैंड पे वो अब नहीं मिलता है, उनको टैक्स भी नहीं मिल पाते हैं. तो जमींदार क्या करेंगे कि उनको अब पैसे उनके पास आएंगे नहीं. सो वो सन्यासी को पेमेंट पैसा नहीं दे पाएंगे और जब वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो बेसिकली सन्यासी क्या करेगा कि वो रीज़न जानेगा कि वाई दे आर डूइंग. तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब उन्हें जो सन्यासी होते थे उनको आर्म्स एंड कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता था फ्रॉम द जमींदार. तो पता था उन्हें कि जमींदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ब्रिटिशर्स है. सो दैट्स वाई जो सन्यासी थे वो बंगाल में 1771 में रिवॉल्ट स्टार्ट किए और ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं आप 50 ईयर्स तक चला और फाइनली 1820 में इसको सप्रेस्ड कर दिया गया. तो इसके बारे में जो सन्यासी रिवॉल्ट है इसके बारे में डिटेल में किसने बताया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्होंने एक नॉवेल लिखा था दैट वाज द आनंद मठ, दैट वाज रिटन इन 1882. और उन्होंने उसमें बताया था कि सन्यासी रिवॉल्ट जो या रिवेलियन था उसका बैकड्रॉप क्या था. और ये जो उनका बुक था आनंद मठ, वहीं से ही हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ का जो नेशनल सॉन्ग है दैट इज़ वंदे मातरम, हम लोग इसी नॉवल से लिया. और हमें पता होना चाहिए कि वंदे मातरम जो था बेसिकली हमें किस नॉवल से मिला है, आनंद मठ से. और आनंद मठ जो हमारा नॉवल है वो किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी. तो ये हमारा पहला रिवॉल्ट था दैट टुक प्लेस बाय सन्यासीज ऑफ बंगाल. मतलब वो पूरे इंडिया के थे पर वो बंगाल में चले गए थे. दूसरा जो था वो था फकीर अपराइजिंग्स, ये भी बंगाल में हुआ था इन बिटवीन 76 to 77, मतलब ये 2 साल तक ही चला था. तो ये जो बेसिकली फकीर अपराइजिंग्स था, तो फकीर अपराइजिंग्स किसके द्वारा किया गया था, जो घूमने वाले मुस्लिम्स होते थे, जो फकीर होते हैं, मतलब फकीर बेसिकली कौन होते हैं, जो मुस्लिम्स मेंडिकांट्स होते हैं. सो उनके अगेंस्ट किया गया था. ताकि क्यों किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल पे एनेक्सेशंस कर लिए थे एंड दैट लेड टू द फकीर अपराइजिंग्स. सो ये फर्स्ट टाइम दैट वाज स्टार्टेड बाय और लेड बाय मजनू शाह. एंड उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि मजनू शाह जब इसको स्टार्ट किए सो ही डिफाइड द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड बिगेन टू लेवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स एंड जमींदार्स इन बंगाल. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वो क्या करने लगे, डिफाइड करने लगे ब्रिटिश अथॉरिटी के एंड जो टैक्सेस होती थी फार्मर्स एंड जमींदार्स को उसको लेवी करने लगे. साथ साथ में उन्होंने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्रीज जो होती थी जो कैश आर्म्स एंड एम्यूनिकेशन से ये सारी कलेक्ट करती थी उसको भी लूटना वो चालू करने लगे. और वो जो मजनू शाह थे वो सिर्फ वो क्या थे, बात कर सकते हैं कि वो बेसिकली
चाहते थे कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, ब्रिटिश एनेक्सेशन हो रहा है बंगाल में, इसको हटाया जाए। तो उनको सपोर्ट भी किए राजपूत किए, पठान एंड डिसबैंडेड इंडियन सोल्जर्स जो थे वो सब उनको एक साथ मिलकर सपोर्ट किए, बट वो भी मर गए। और उनके मरने के बाद फिर से रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया बाई हिज सन दैट वाज द चिराग शाह हिज ब्रदर। और उनके जो ब्रदर थे वो इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किए और कुछ हद तक ये सफल रहा। तो इनमें इन दोनों के अलावा भी और लीडर्स थे, दैट वाज द भवानी पाठक एंड देवी चंदुरानी। सो ये जो हमारे लीडर्स थे ये अदर इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए, बट इट वाज नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। तो तीसरा जो हमारा रिवोल्ट था दैट वाज द पागलपंथीज। सो बेसिकली ये जो आपका पागलपंथी रिवोल्ट है इट वाज अ रिलीजियस रिवोल्ट। ये बेसिकली किसके द्वारा टुक प्लेस किया गया था, बाय द करीम शाह इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मायमनसिंह एंड शेरशाह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो बेसिकली ये जो था आपका पागलपंथी, इसका फिलोसफिकल ऑर्डर क्या था कि रिलीजियस हार्मोनी एंड नॉन वायलेंस को हम लोग सबको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब उनका रिलीजन की तरफ ज़्यादा ही बढ़े थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थे वो उनके अगेंस्ट थे। सो दैट्स वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की वजह से जो ब्रिटिश के पॉलिसीज थी, जो टैक्स रिजाम्स थी, उसको स्टॉप करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और इसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लीडर थे, दैट वाज द टीपू शाह। बेसिकली जो टीपू शाह थे ही वाज द सन ऑफ करीम शाह। सो करीम शाह के मरने के बाद ही ये रिवॉल्ट टीपू शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट वो उन्होंने टीपू शाह ने भी अच्छा काम किया बिकॉज ही कैप्चर्ड शेरपुर इन 1825 एंड प्रैक्टिकली रूल्ड ओवर द शेरपुर एंड मैमान एरिया। जो मैमन सिंह का जो एरिया था और शेरपुर का, वहाँ पे वो कुछ टाइम तक रूल किए, बट फाइनली he got captured and that was not fully successful। but यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी कंटिन्यू रहा टिल 1850। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक ये जो हमारा रिवेलियन है ये चलता रहा। तो इसके बाद से एक और हमारा मूवमेंट है दैट वाज द वहाबी मूवमेंट्स। बेसिकली ये वहाबी मूवमेंट जो था ये था इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न इस्लाम। जो वेस्टर्न इस्लाम होते थे, जो वेस्टर्न कल्चर होते थे, वो कैसे इस्लाम पे अफेक्ट कर रहा था, उसको एबॉलिश करने के लिए, उसको मतलब उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया था वहाबी मूवमेंट्स। इसका टाइम पीरियड था 1820 टू 1830। सो इट वाज द इस्लामिक रिवालिस्ट मूवमेंट एंड इट वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद अफराई बरेली, जो कि इंस्पायर्ड हुए थे अब्दुल्ला वहाब से, जो कि सऊदी अरबिया के थे, एंड शाह वली उल्लाह ऑफ दिल्ली। सो सैयद अहमद जो थे उन्होंने कंटेम्प्ट किया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कि कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में इस्लाम को अफेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने इस्लाम को प्योर करने की बात की। दैट वाज द वहाबी मूवमेंट। थर्ड इज लास्ट, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इज द फराजी रिवॉल्ट। सो इट टुक प्लेस इन 1838 एंड फाइनली इट कंटिन्यूड टिल 57। सो ये जो हमारा रिवॉल्ट था ये किसके द्वारा कंटिन्यू किया गया था, जो मुस्लिम सेक्ट्स होते थे उनके द्वारा। और ये सबसे ज़्यादा फाउंडेड किसके द्वारा किया था, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। तो ये जो हमारा फराइजी रिवॉल्ट था इस स्प्रेड टू द फरीदापुर, वखारगंज एंड माइमन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। सो ये जो आपका रिवॉल्ट था, ये जो मूवमेंट था, इसका सबसे बड़ा रीजन बात करें तो इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द कॉज ऑफ द टेनेंट्स दैट वाज अगेंस्ट लैंड लॉस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं था, अगेंस्ट नहीं था, बट लैंड लॉस के अगेंस्ट था, क्योंकि लैंड लॉस जो थे हैवी टैक्सेस लगाते थे, तो ये भी एक फैक्टर्स था। तो ये किसके द्वारा लेड किया गया था, बाय द शरीयतुल्लाह सन दादू मियान के द्वारा। नेक्स्ट रिवोल्ट इज द कुक्का रिवोल्ट। सो बेसिकली कुक्का रिवोल्ट जो था, इससे पहले जानते हैं कि हु वाज कुक्कास। सो बेसिकली कुक्कास जो थे दे वेर कॉल्ड एज नामधारीज एंड दे वेर द सेक्ट्स विद इन द सिखिज्म। सो दे स्टार्टेड आउट अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म। सो व्हाट दे स्टार्टेड कि वो लोग जो सिखिज्म है उसको प्यूरिफाई करने लगे, बट अंडर राम सिंह ये क्या बन गया, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, क्योंकि पहले तो था इसको सिखिज्म को प्यूरिफाई करने का, बट विद द टाइम राम सिंह जब आए तो इस मूवमेंट को वो एक टर्निंग ला दिए, दैट वाज द पॉलिटिकल ओवरटर्न एंड दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट और बोल सकते हैं एमिंग ऑफ रिस्टोरिंग सिख रूल्स इन पंजाब एंड आउटसाइड द फॉरेन पावर्स, ताकि हम लोग फॉरेन पावर्स को हटा दें और यहाँ पे पंजाब में बेसिकली हम लोग सिख को रिस्टोर करें। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो हुक्कास थे दे वेयर ओनली वाइट एंड हैंड ओपन क्लॉथ्स एंड बॉयकटेड ब्रिटिश एजुकेशन एंड प्रोडक्शन लॉ। मतलब वो ब्रिटिशर्स के जो भी एजुकेशन होते थे, प्रोडक्ट्स होते थे, या उनके जो पावर थे, उन सबको वो लोग अगेंस्ट थे, उन सबको बॉयकटेड करने लगे। एंड फाइनली इन 1872 राम सिंह वॉज कैप्चर्ड एंड एक्साइल्ड टू रंगून। सो फाइनली वो कैप्चर कर दिए गए और उनको रंगून में भेज दिया गया। Sorry, I forgot it. So I was teaching about Kuka's
कुका रिवॉल्यूशन। सो इसमें आपको पता चला गया कि ये जो था ये बेसिकली सिखिज्म को प्यूरिफाई करने के लिए था, और ये रिवॉल्ट जो था किसके द्वारा टुक प्लेस किया गया था, जो हमारे कुका जो थे पंजाब के, उनके द्वारा टुक प्लेस किया गया। तो ये इट तो दैट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश एजुकेशन एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर लॉज। तो हमें पता चला कि फाइनली राम सिंह को कैप्चर कर लिया गया 1872 में, और ऑलमोस्ट देखते हैं कि यहाँ पे 65 कुकाज जो थे दे वर बर्न फ्रॉम द कैनन्स बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द मुपला रिवेलियंस, जो कि बेसिकली मालाबार में हुआ था इन 1835 टू 1921। मतलब इट वाज अ लॉन्ग टर्म रिवॉल्ट और रिवेलियन। सो बेसिकली जो मोपला रिवेलियन है, इट इज ऑल्सो नॉन एज मोपला राइट्स ऑफ 1921। बेसिकली ये जो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा खिलाफत मूवमेंट था उसके आसपास का ये भी टाइम पीरियड था, ये एक सीरीज ऑफ राइट्स था कि जो टाइम टू टाइम से चलते आ रहा था। और ये किसके द्वारा टुक प्लेस किया गया था, बाय द मोपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला इन 19th and 20th century against the British and also Hindu land loss in Malabar that is located in northern Kerala. So it is not only a revolt but it was an armed revolt. ये armed revolt था जो कि took place किया गया था by Waryam Kunnath and Kunja Ahmad Haji. So that was very important revolt because it was in news in 1920. So you should know about the Mopla rebellions. And this is all about political and religious movement. We will next topic we will cover about the tribal movements. So thank you everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.